بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں پاکستان اور افغانستان کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ دن بدن کیوں خراب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے بھائی، ان کی مہربانی ہے، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب۔ آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں سر، آپ کا شکریہ کہ آپ میرے ساتھ ہیں سر۔ اچھا سر، یہ جو پاکستان اور افغانستان ہے، آئے دن ہم سن رہے ہیں کہ ان کے آپس میں جو حالات ہیں ہمارے یعنی کہ افغانستان کے، قصور کس کا سر، افغانستان کا یا پاکستان کا، جس کی وجہ سے یہ چپکلش سی ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان ہے یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ سم ٹائم آپ نے زیادہ انٹرونشنسٹ پالیسی اڈاپٹ کی، خاص طور پہ یہ جو ڈفرینٹ جنگ کی فیزز ہیں 80 کی دہائی سے اب تک، اور شاید یہ ایک اچھی پالیسی نہیں تھی۔ لیکن افغانستان کے اندرونی حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی ایک ایسا ملک ہے جو 70 کی دہائی سے مختلف جنگ و جدل کی صورتحال ہے، اور اس کے اندر صرف ریجن کا قصور نہیں ہے یا گلوبل پاورز کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو اندر فیکشنز ہیں افغانستان کے اندر انٹرنل، جو کہ ٹرائبل ایتھنک ہسٹوریکلی رائولریز چل رہی ہیں، وہ بھی وار لارڈزم ہے۔ تو اس کا بھی ایک، جب کنٹری کے اندر مسائل ہوں تو وہاں خطے کی اور باہر سے جو لوگ یا اقوام انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کانفلکٹ کے اندر، وہ بعد کی بات ہے۔ اصل تو مسئلہ اندرونی ہے۔ اب پچھلے، یعنی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 25 سال کے اندر تو 20 سال تو وار آن ٹیرر یہاں پہ چلی، اس کے اندر نیٹو اور آئی سیف، پوری دنیا کی فورسز یہاں پہ امریکہ لیڈ کر رہا تھا۔ آخر میں امریکہ نے وڈرا کر لیا، طالبان جن کے خلاف یہ جنگ شروع ہوئی تھی وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے، اور وہ وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی جو کہ انہوں نے پچھلی دفعہ کی تھی 90 کی دہائی میں۔ لیکن اب سر ان کو کہا جاتا ہے ان کو اسلحہ زیادہ مل گیا، امریکن اسلحہ چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ بھی مل گیا ہے۔ پھر پہلی دفعہ ہے کہ جی وہ سول وار اس طرح سے ایسے نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے سول وار کے باہر کوئی ایکسٹرنل اس کا بیڈر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی آرگنائزیشنز کو پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یا ان کو یعنی اسپانسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسپانسر جیسے ہی ملے گا یہاں پہ مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اکثر یعنی اتنی بڑی جنگ کے بعد افغانیوں کو افغانستان کا کنٹرول ملا، اس میں وہی مسائل دوبارہ شروع ہو گئے ہیں کہ جی اپنا لڑکیوں کو اسکول نہیں جانے دینا، یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں لڑکیوں کے لیے، خواتین کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کام پہ جائیں، یا ایون یو این کے جو ڈفرینٹ این جی اوز ہیں اس کے اندر انہوں نے بالکل ان کو فارغ کر دیا پچھلے 2-3 مہینے پہلے، یہ آخری ان کا تھا۔ ان کو یعنی آزادی نہیں ہے گھومنے کی، خاص قسم کا ان کو ایک ڈریس پہن کے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام ڈارک ایجز والی پریکٹسز ہیں جو کہ اپنا اس وقت کی حکومت جو ہے، عارضی حکومت افغانستان میں جو طالبان کی ہے وہ کر رہی ہے۔ اب پاکستان تو افغانستان نہیں ہے نا جی، پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہیلتھ، ایجوکیشن، بیسک رائٹس، یا سارا کہ نارمل جو ریاست چلتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ریاست ہے یا اس طرح کے جو اصول ہیں جو کہ بالکل مطابقت نہیں رکھتے، اس کو تو کوئی بیک نہیں کرے گا نا۔ پاکستانی سول حکومت، پاکستانی عسکری ادارے، ظاہر ہے کہ وہ اپنا اس کو مطابقت نہیں رکھتے اس چیز سے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ جب لکھ کے دیں کہ ہماری جو زمین ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ٹیررزم جو آپریشنز ہیں، اور ساتھ میں یہ ہمیں پتہ چلے کہ پچھلے جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں ہمارے ہاں ٹیررزم، خاص طور پہ چونکہ ہماری جیوگرافی کا مسئلہ ہے، لارجسٹ بارڈر جو افغانستان کے پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب آئی ایس کے پہ جو اپنا اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے نام سے ایک نوٹوریس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، وہ آئی تو مارز وجود میں عراق اور سیریا کے اندر تھی، لیکن اب اس کی ایکسٹینشن اور سب سے لیتھل جو ہے نا اس وقت وہی آرگنائزیشن ہے ہمارے لیے خاص طور پہ۔ ساتھ میں جو تحریک طالبان پاکستان، جس کو ہم نے کافی حد تک ختم کر دیا، دوبارہ وہ ری گروپ ہو کے ری جنریٹ ہو کے دوبارہ ہم نے اٹیک کر رہی ہے افغانستان میں، اس کی بیسس ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی ملک جو ہے، کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کرتی کہ اس کے معاشرے کے اوپر، اس کے لوگوں کے اوپر
जंग व जदल मुसलत की जाए, और ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्री से। जी। तो पाकिस्तानीज़ ने काफ़ी दफ़ा उनसे कहा है कि भैया आप अपना इनको कंट्रोल करें, और आप अपनी सरहदें जो है वो हम सर उसको यहाँ जी मुझे समझ आ गई सर। एक यहाँ पे सवाल है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर दिया। बात ये थी कि ये जो जनरल फैज़ हमीद जब DGISI थे और फिर हम गए शायद हकानी नेटवर्क के हवाले से कहा जाता था कि उनको हिस्सा इमारत इस्लामिया में दिलाने के लिए हम जा रहे हैं, और चाय का कप एक बड़ा मशहूर हुआ था एयरपोर्ट पे। बेशक वो अब चाय के कप वाले साहब जो हैं उनका अपना कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उनकी जो पॉलिसी थी जो उस टाइम कि उन्होंने कुछ लोगों को माफ़ करके इमरान खान के साथ शामिल होकर, यानी कि एक जो इनकी रजीम थी, तो वो जो नुकसान हुआ है, क्या वो लोग अंदर घुस के आ गए? फिर एक एडिशनल बात मैं ऐड करूं सर, वो ये कि जो फिर हमारे कौमी तराने पे उनके कौंसलेट और सफ़ीर जो हैं वो भी उठ के खड़े नहीं होते और बैठे रहते हैं, और जवाब भी फिर अजीब सा देते हैं, और दूसरी दुनिया में जाके गैर मुस्लिमों, क्योंकि इधर से इमारत इस्लामी है, उधर से गैर मुस्लिमों के कौमी तराने पे बाकायदा खड़े होते हैं। तो ये जो दो सवाल थे कि एक तो वो जो चाय की प्याली और वो जो पॉलिसी, और एक ये वाली बात। देखो, टेररिस्ट के साथ अपीजमेंट नहीं चलती, जी ठीक है, सीधी सी बात है। मेरा तो पुराना एक अपना वो है स्टेटमेंट, ये है कि फंडामेंटलिज्म जो है ना, ये दिमाग ख़राब होने वाली बात है, ये नफ्सियाती मर्ज़ है। एक दफ़ा बंदा फंडामेंटलिस्ट हो जाए ना, तो कम अज़ कम इस लाइफ स्पैन के अंदर तो वो दोबारा नॉर्मल नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को तो ज़ाहिर है फिर एक ही लैंग्वेज रियासत को इस्तेमाल करनी चाहिए, वो कि यूज़ ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो अपीजमेंट PTI गवर्नमेंट ने की, और वो हज़ारों लोग यहाँ पे ले आए, तो वही लोग हैं जो कि रीग्रुप होके, और ट्राइबल एरियाज़ में ख़ास तौर पे आपको डिफरेंट कभी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने हुकूमत कर ली है इस्टेब्लिश, लेकिन शुहदा का तादाद आप देख लें कि हमारे अस्करी इदारों को बहुत बड़ा चैलेंज है, आवाम भी अपना उससे बड़े परेशान है, और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें अफ़गानिस्तान को बड़ा एक मीनिंगफुल यानी हमें एक स्टैंस लेना चाहिए। और देखें, ये बात जो है ना, अपना पाकिस्तान ये कोई इतनी वीक रियासत नहीं है। पाकिस्तान ने 90s के अंदर भी आपने देखा कि हम तो चाहते थे कि वहाँ पे पीस हो, जब सोवियत फोर्सेस चले गए, इवन सऊदीज़ भी आ गए, हमने मिल के वहाँ पे एक दो दफ़ा उनको कस्में भी उन्होंने खाई, लेकिन आपस में इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा थी ना, तो डिफरेंट फैक्शंस, और उस फैक्शन में से एक अपना तालिबान निकल के है। तालिबान को हमने सपोर्ट किया शुरू के अंदर, हमने हर किस्म की असिस्टेंस दी, फिर एक दो और कंट्रीज़ भी हमारे साथ मिले, लेकिन क्या हरकत की इन्होंने वही हरकत की जो अब कर रहे हैं, मुआहदा भी तोड़ दिया सर, इनको खाना कवा में बिठा दिया था ग्रुपों में। अगर आप ये हरकत करोगे तो देखें, अगर आपको हमने बनाया है ना, तो हम आपको यहाँ से निकाल भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान की देरीना ख्वाहिश रही है कि जो एक हिस्टोरिकल हमारे कनेक्शंस हैं, वो सिल्क रोड के टाइम से सेंट्रल एशिया के साथ, वो मुस्लिम रियासतें हैं, अब भी हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन अफगानिस्तान बीच में आता है ना फिजिकली। तो हम सेंट्रल एशिया के अंदर जो ये हमारी पिछली 35-40 साल पुरानी पॉलिसी है, 91 में जब लिबरेट हुए थे उस वक्त से ही हम ख्वाहिश के मंद है कि हमारे कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इवन सिक्योरिटी रिलेशंस इन रिपब्लिक्स के साथ ज़्यादा हों, ठीक है। और ज़्यादा उसके बियॉन्ड अपना हमारी डाइवर्स फॉरेन पॉलिसी में चीन भी है, रूस की भी है, ये खित्ता है ना पूरा, बिल्कुल। उसमें अफगानिस्तान को हम कभी अलो नहीं करेंगे कि वो अपना उसके अंदर जो है वो रुकावट बने। और अगर तालिबान ये समझते हैं कि जी हम अपना यहाँ पे टेररिज्म करके या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के साथ मिलके या ईरान के साथ मिलके हम कोई अपना इसको, इस रियासत को या सोसाइटी को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो वो अपना कम अकली है उनके, वो ग्रेटर अफगानिस्तान का भी सोचते हैं, मसला नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो अपना, हमने पूरा 2-3 जंगें हमने लड़ी हैं, हमें उसकी अंदरूनी हालात का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, और अगर हम चाहें तो कोई यानी बजा नहीं है कि ये तो तालिबान की गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्टे करेगी। अच्छा सर, ये बिल्कुल सर, ये जो नफरत है अफगानियों में पाकिस्तानियों के साथ, मैं गया था सर अफगानिस्तान में 3-4 दफ़ा ना,
बाय रोड में काबुल से पंजशेर भी गया और मैं फिर वहां पे घूमा भी, काबुल शहर में भी घूमा था। ये किसने फैलाई है? वो अपना खालिद उसमें देखना चाहिए कि काबुल जो है ना, वो जाहिर है कि यहाँ पे वो दरी स्पीकिंग मोस्टली नॉर्थ अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। तो अगर आप कंधार में जाएं, गजनी में जाएं, दूसरे इलाकों में जाएं, ये सारे जो पश्तून मेजोरिटी है ना पार्ट्स, खास तौर पे जो बॉर्डरिंग पाकिस्तान है, वहाँ पे बड़ा प्यारा मोहब्बत है, कोई ऐसी बात नहीं। जी जी, वहाँ पे है सर, वहाँ पे है। ये जो दरी स्पीकिंग है, जाहिर है कि इन्होंने पंजशेरी भी सर, सफर भी किया है ना, मतलब यहाँ पे हमने इनको बैक किया, तो वो फिर जो माइनॉरिटी अफगानिस्तान है जी, तो माइनॉरिटी अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा सा हमारे साथ अपना वो रहता है। हालांकि एक लिहाज से मैं आपको बताऊं कि दोनों, इवन आजकल भी मैं देखता हूं कि यहाँ पे जो लोग अपना वेस्टर्न एम्बेसी से वीज़ा के लिए, अमेरिका के वीज़ा के लिए, वो इस्लामाबाद में ही, पेशावर इस्लामाबाद में रहते हैं, पोस्ट सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। और बड़ी अपना अच्छी हॉस्पिटलिटी है हमारी। वो पहले भी जब था ये नॉन पश्तून सेगमेंट आया था काबुल से या नॉर्थ अफगानिस्तान से, इस्लामाबाद में भी, पेशावर में, और जो अर्बन एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे आके उन्होंने रहे भी, और उसके बाद उनके बच्चे भी पैदा हुए। बहुत सारों के पास सिटीजनशिप भी है पाकिस्तान की। तो एक आर्गुमेंट तो सिंपल है जो आप दे रहे हो कि जी ये, हाँ, हालांकि हमने इनके साथ, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, बड़े एहसान है हमारे, थैंकलेस लोग हैं। मेरे ख्याल में ये पर्सपेक्टिव मैं बाय नहीं करता, ठीक है। ये माइनॉरिटी उससे है और अपॉर्चुनिस्टिक एक स्टैंस नजर आता है, मेजॉरिटी का इशू नहीं है। सेकंड ये कि हमें इस तरह के आर्गुमेंट से हमें एक ब्रॉडर जो एक हमारा, चाहे जितने भी ताल्लुकात खराब हो ना स्टेट टू स्टेट लेवल पे, जी जी, हमें उसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए पब्लिक टू पब्लिक पे। सही। ये बड़ा खतरनाक चीज है, बिल्कुल। लेकिन नेक्स्ट डोर है। जी इवेंचुअली हो सकता है अगर आप सर्वे कराओ पूरे अफगानिस्तान का, जी। तो आपको पता चले कि वो ज्यादा अपना प्रो पाकिस्तानी ओपिनियन। लेकिन सर ज्यादा ये भी हो सकता है जो हुकूमत बैठी है, फर्ज करें, हाँ उनका खौफ भी तो होता है ना अवाम पे। हाँ, वो होता है, लेकिन तालिबान का कंडक्ट जो है ना इनका, यानी माजी में जो पाकिस्तान की हेल्प है इनके लिए, या इसकी वजह से हम डबल गेमर भी कहे गए जी अपना अमेरिकी की तरफ से कि डबल गेम खेलते हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से कहे ना। बिल्कुल नहीं की वजह तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, जी, इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री, इट इज अ वेरी पावरफुल फख्र है हमें इस पे सर। एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल। ठीक है। हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की पेनिट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अफगान रियलिटी, ठीक है जी, वो कोई कंपेरेबल नहीं है। तो कोई इस ख्वाब में नहीं रहना चाहिए कि भाई आपको यहाँ पे, आप पहले भी, हम देखो ना, पहले मसला क्या हुआ था खालिद जी, मसला ये हुआ था कि यार जिहाद में हमने हेल्प की, तो ये रब्बानी, हिकमत यार, सारे ग्रुप्स, यहाँ पे 7 ग्रुप्स थे जो कि पेशावर में बेस्ड थे, इस्लामाबाद भी चक्कर लगाते थे। जिहाद में हमने हेल्प किया। जब गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्मेशन हुई रब्बानी ने 1993 में, वो सीधे इंडिया के पास चले गए, और वो जो अहमद शाह मसूद था वो इनका डिफेंस मिनिस्टर था, लेकिन असल में गवर्नमेंट वही रन करता था। वो भी वो भी इस तरह नहीं होता। इंडिया वाज साइडिंग विद द सोवियत यूनियन, वो एक प्रो यानी सोवियत कैंपेन था, सोवियत यूनियन के साथ के, नजीबुल्लाह के साथ उनका रिलेशंस थे, और ये रेजिस्टेंस फोर्स पाकिस्तान के साथ थी, ईरान के साथ थी। भाई ये नहीं हो सकता कि जब ये रेजिस्टेंस फोर्स विन करे, जिसने आपको सपोर्ट किया, आप उसके खिलाफ शुरू हो जाओ, यू नो। इसीलिए फिर पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया, और इन दी एंड तालिबान केम टू पावर। अब तालिबान की भूल होगी कि वो इक्तदार में जब जाएं, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दे। भाई ये तो हिस्ट्री रिपीट कर रही है ना, तो हिस्ट्री फिर उस तरह भी रिपीट करेगी कि नहीं? सर ये अमेरिका गेम करके तो नहीं गया? कई लोग कहते हैं कि अमेरिका गेम कर गया। अमेरिका बेचारा हार के गया इधर से, वो हार के गए, वेपन छोड़, लेकिन वेपन बहुत दे गया, यानी बहुत ही यानी अफसोसनाक यानी विड्रॉल था वियतनाम के बाद। अच्छा सर, तो वो तो अपना कोई ऐसी बात नहीं है, 20 साल बहुत, लेकिन वो भी एक चीज है कि दे लुक फॉर एनिमीज, और वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो 2 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन आधा जेब में डाला, तो वो एक और फिर थिएटर तलाश करते हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल में ट्रम्प इसीलिए वो इस वक्त डीप स्टेट के खिलाफ है कि वो नहीं चाहता कि नई जंगें शुरू हो, और ये फिर वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाएं, पैसे बनाएं, थोड़ा सा पैसा पानियों को मिल जाए, बाकी सारा जेब में डाल लें। अच्छा सर जी, आखिरी सवाल है ये कि जो हम इस वक्त जो डील कर रहे हैं जिस तरह अफगानिस्तान को, क्या हमारी यानी कि जो स्टेट है वो सही डायरेक्शन में है, या कोई आपको लगता है कि यहाँ पे गैप है, इसको फिल होना चाहिए? कोई ऐसा मशवरा, क्योंकि आप भी
बैन अल-अक़वामी अमूर देखिए के माहिर। हमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग अफगानिस्तान के साथ, चाहे जो भी रूलर हो, कारज़ई था पहले, उसके बाद आया, फिर ये आ गए, इससे पहले ये थे, हमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, बिकॉज हमारी रिलेशनशिप जो है अफगानिस्तान के साथ वो अपना मल्टी लेवल एंगेजमेंट है, वो ट्रेड भी है, वो ट्रांजिट ट्रेड के अंदर हमारा वाहिद अभी भी रास्ता है, ईरान अभी नहीं बना, ठीक है। कल्चरल रिलेशंस हैं, मेडिकल के लिए अभी भी अफगानी यहाँ पे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स के अंदर आप चले जाओ, किसी भी आपको मोहब्बत नजर प्यार आता है ना, जी। ठीक है। सो एक पब्लिक लेवल, कल्चरल लेवल, हिस्टोरिकल हमारा कॉन्टेक्स्ट है, इकोनॉमिक ट्रेड, ये सारे रिलेशंस तो चल रहे हैं ना। जी। मसला सिर्फ अपना पॉलिटिकल और सिक्योरिटी में है ना, तो उसके अंदर भी इवेंचुअली एंगेजमेंट ही करनी चाहिए। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी आ रही है टेररिज्म की, तो जाहिर है हम अपना सर्जिकल ऑपरेशंस भी वो करते कर रहे हैं हम ना सर। बता देते हैं कि जी ठीक है, ये भी करना चाहिए और प्रेशर भी करना चाहिए। तो यानी- डिप्लोमेसी को नहीं छोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि हमने डिप्लोमेसी को अगर अबेंडन किया तो वो जाहिर है काइनेटिक ऑपरेशन से तो मसले हल नहीं होते ना। सर शुक्रिया आपका, आपने गाइड किया, और बात जो मुझे समझ आई है वो यही है कि आपस में डायलॉग होने चाहिए, और डायलॉग ही एक वाहिद हल है।